नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से हमारी बड़ी मदद है। चैनल का विस्तार होता है, प्रचार प्रसार होता है और वीडियो को शेयर करने से रिटायरीज़ के मुद्दे प्रचारित प्रसारित होते हैं, दूर तक जाते हैं। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाते हैं। सभी रिटायरीज़ को मोबिलाइज और मोटिवेट करते हैं, गवर्नमेंट तक जाते हैं। एक पत्र का मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। पत्र है श्री रमेश भटेजा जी, सीनियर पेंशन एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने वेंकटचलम और बंदलीस जी को पत्र लिखा है पेंशन अपडेशन के ऊपर, और उनके विचार हैं। और उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था, डिस्कस भी किया था, और मैंने इसको देखा था। मुझे ठीक लगा पत्र, तो आपको मैं भेज रहा हूँ। आप चाहे तो आप लिख सकते हैं इसे। वो लिखते हैं, डियर मिस्टर वेंकटचलम जी एंड श्री बंदलेश जी, रिगार्डिंग पेंशन अपडेशन, वी द मेंबर्स ऑफ AIBRF wish to submit that we do not see any hope for pension updation in the near future. Even after 5-6 wage revisions in banking industry, pension has not been revised. It has become very difficult to live even a normal life with this merger amount of pension. I keep waiting with the hope that our issue of pension will be decided by during BPS by exerting due pressure on IBA, but I face desperate when it is being sidelined every time. In this respect, we have come forward to put before you with certain suggestions as under which may be considered for all other pensioners also, because it will not be denied by any pensioners. ये नया कंसेप्ट इन्होंने बताया, नया एक सिस्टम लेके आए हैं, और आपको अपील करता हो तो देखें आप। इनका एक व्यू है इसमें, और इसीलिए इन्होंने ये जो है एक विशेष पत्र बन जाता है। Number 1, this is judicious demand that pension updation be considered on the lines of RBI pension rules with effect from 1st March 2019. It is proposed you to vigorously pursue IBA for pensioners, and if it is achieved within 3 months, the pensioners will be required to pay 5% levy to the unions. This proposal may be discussed with the leadership of AIBRF and IBAPAR and CBPRO, which are having maximum membership. तो ये एक नया कंसेप्ट है, आपने सुन ही लिया होगा। सेकंड में नंबर 1, also it is proposed regarding premium of health insurance on the life pattern of LIC for insurance of 10 lakhs, where 25% of the premium is paid by pensioners by way monthly installments deducted from their monthly pension and 75% is borne by LIC. The demand of domiciliary treatment is under their consideration. ये LIC में है, वो उन्होंने बताया है। नंबर 2 का सेकंड, the payment for some amount, say 2000 per month, may be paid with pension for domiciliary treatment may be considered. It will be win-win position for all and will help to resolve both of the long pending issue of pensioners. Number 3, an additional 5% may be deducted from all pensioners from their areas of updated pension to build up a separate trust for funds collected. Trustees should be considered from pensioners and union leaders. The income earned on investment in government securities may be used for payment of health insurance premium every year. Number 4, in the bipartite settlement, the pensioners representation may be considered to maintain transparency, and it will help cordial relationship between working and retirees unions. Regards, Ramesh Bhateja, ESBJ बैंक, और ये स्टेट बैंक से पेंशन लेते हैं, पर SBBJ के हैं रिटायर्ड। तो ये इनका अच्छा सुझाव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई अमल वो लोग करेंगे।
पर करें या ना करें, उन्होंने एक सुझाव दिया है और लेटर लिखा है, मेल किया, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। और मैं राजेश कुमार त्यागी, मेरा मोबाइल नंबर 8588898205। आप इस पर कोई सहयोग मेरे से ले भी सकते हैं, मुझे दे भी सकते हैं। और मैं आपके साथ हमेशा सहयोगरत रहता हूँ, विभिन्न आपको चीज़ें और नई नई बातें बताता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो शेयर करता हूँ, और अपने व्यूज़ भी बताता रहता हूँ। और कोर्ट केसेज और अदर देन कोर्ट जो भी रिटायरीज इशूज़ में होता है वो सब मैं आपको बताता हूँ। अभी एक लेटर और शेयर करूँगा, अभी इसमें इतना ही। हाँ, एक और मैं आपको बता देता हूँ इसके अलावा, कि जो विडोज़ हैं, डॉटर्स हैं, विडोज़ अनमैरिड डॉटर्स हैं और डाइवोर्सी डॉटर्स हैं, और जो डिपेंडेंट हैं मदर फादर पर, तो उनको होल लाइफ पेंशन मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ 25 वर्ष तक ही मिलती है, जबकि अदर सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में होल लाइफ है। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीज़न है, 2004 में आ गया था एक डिसीज़न, फिर 2007 में आया, तो उनको उस डेट से मिल रही है। तो हमारे यहाँ भी मिलनी चाहिए, और बहुत लोग इसकी डिमांड करते हैं और कहते हैं, और हमने ये ऊपर तक उठाई हुई है चीज़। इसके अलावा कम्यूटेशन 15 वर्ष से 12 वर्ष भी होना ज़रूरी है। और हमारे ग्रेजुएटी के 2 इशूज़ हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं करता, वो होने चाहिए। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस का मुद्दा, वो बहुत नुकसान हो रहा है स्पेशल अलाउंस से। 1/11/2012 के बाद के रिटायरीज़ के लिए, और कहीं ना कहीं वो पुराने रिटायरीज़ को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि सारा 2012 के बाद तो उसमें चला गया स्पेशल अलाउंस में। और पहले ये 7.75 से 10% था, अब इन्होंने 26 से 31% तक कर दिया। और इस बार सेटलमेंट में अब ये स्केल 1 को 12.5 प्लस DA का नुकसान हो रहा है, स्केल 2-3 को 14.5 प्लस DA का नुकसान हो रहा है, और इसी तरह से स्केल 6 तक जब हम जाते हैं तो ये 28,000 प्लस DA का नुकसान हो रहा है, यानी कि 14-15 हज़ार से लेकर के 34-35 हज़ार तक का पेंशन में नुकसान हो रहा है हर एम्प्लॉय को, ग्रेड वाइज, स्केल वाइज। और क्लर्क और सबऑर्डिनेट को भी 10,000 से लेकर के और 12-15 हज़ार तक का नुकसान बैठता है पेंशन में। ये स्पेशल अलाउंस का एक क्लोज है जो बड़ा ही। और हेल्थ इंश्योरेंस का तो आपने अभी सुना, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया, और पेंशन अपडेशन का आपने इसमें सुना, पहले भी मैंने आपको वीडियो में बना। धन्यवाद साथियों। RK त्यागी, राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद। भारत माता की जय, वंदे।